السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اللہ شروع کریں. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پچھلے ہفتے ہم نے لیسن 10 شروع کیا تھا. لیسن 10 کا جو یعنی حوار کا پورشن ہے، کنورسیشن کا پورشن ہے، ہم اس کے اختتام پر پہنچے تھے، لیکن کچھ چیزیں ابھی مطلب جو رہ گئی تھیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو آج ہم یہاں اس کو پھر سے شروع کریں گے. حامد اور محمد کے درمیان ایک گفتگو چل رہی تھی. حامد کہہ رہا تھا کیا ذهبت گئے آپ الى الکویت کویت یا محمد کیا آپ کبھی گئے ہیں کویت؟ have you ever been to کویت؟ محمد جواب دیتا ہے نعم ہاں، ذهبت میں گیا ہوں. نعم ہاں ذهبت. اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ ذهبت کی با پر فتحتن ہے، زبر ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب بھی فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو یا اور کوئی فعل مضارع ہو وغیرہ، جب بھی اس کے آخر پر ضمیر متحرک اٹیچ ہو جاتی ہے تو ہم فعل کے اپنے اصلی آخری حرف کو ساکن بناتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے ذہب، با کے اوپر جزم ہونی چاہیے. ذہب تو، جلس تو، کرع تو، ٹھیک ہے. تو یہ ہونا چاہیے ذہب تو. جن کے پاس کتاب ہے تو وہ اس کو یہاں کریکشن اس کی کریں اگر وہاں بھی یہی چیز ہے. حامد پھر سے کہتا ہے وَزَمِيلُكَ، اور آپ کا کلاس میٹ یا آپ کا کلیگ. اَيْنَ أَبُوهُ، اس کے والد صاحب کہاں ہیں؟ اَيْنَ أَبُوهُ، اس کے والد صاحب کہاں ہیں؟ محمد جواب دیتا ہے أَبُوهُ فِي الْيَابَانِ، اس کے والد صاحب جاپان میں ہیں. اس کے والد صاحب جاپان میں ہے. ہوا تاجر کبیر، ایک بڑا تاجر ہے. ہوا تاجر کبیر، ایک بڑا تاجر ہے، وہ ایک بڑا تاجر ہے. حامد لک اخن یا محمد، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ ڈو یو ہیو اینی بردرز، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ لک اخن، یہاں یاد رکھیے آپ کہ جو یہ بات میں نے کہی اردو میں، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے، یہ کوئی جو تصور ہے اس کا کوئی یہاں کوئی ورڈ استعمال نہیں ہوا ہے. یہ خود ہی آپ جب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے تو آپ لا استعمال کریں گے، اور لکا کاف تو یہ تو ہوتی ہے یور، یعنی ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے. لکا کیا کا، تو پھر آپ جس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں بھائی ہے، کوئی انکل ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی دوست ہے، تو آپ اس کو اس میں نکرہ میں استعمال کریں گے. اخن، جس کو میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ یہ اس میں نکرہ ہے. اس میں نکرہ مینز مثال اے بک، اے بوائے، اے بردر وغیرہ. تو یہاں معنی ہوگا اے بردر کے بجائے اینی بردر، جس کو انگلش میں اگر آپ کو کسی کو پوچھنا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں ڈو یو ہیو اینی بردرز، کیا آپ کو کوئی بھائی ہے. تو کوئی بھائی یا اینی بردرز، اس کو آپ سمپلی ٹرانسلیٹ کریں گے عربک میں بردر کا یا اس چیز کا جس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو اس میں نکرہ میں یعنی وداؤٹ الف لام استعمال کریں گے آپ، تو اس کا معنی وہاں ہوگا کوئی. مثال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عندک کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے. عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی قلم ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ذرا نوٹ کیجئے. پھر ہے محمد، نعم ہاں، لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے.
अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। यहाँ नोट कीजिए जिनके पास कलम और कॉपी है कि वाहिद यानी वाहिद मीन्स एक, वाहिद मीन्स एक। ये एक जो है जिसको आदत बोलते हैं, इसमें इस यानी ग्रामर के हवाले से इसको बोलेंगे आदत जो है यानी एक। ये एक आदत जो है ये आएगा बतौरी सिफत, बतौरी सिफत इस्तेमाल होता है, एक भी और दो भी। क्योंकि अरबिक में अदद और मादूद को समझना जरा डिफिकल्ट है, लिहाजा इसको आज से ही थोड़ा 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 समझने की कोशिश कीजिए। मैं दो अद्दों के बारे में आज सिखा रहा हूं। वो क्या है? वो है एक यानी वाहिद और इस्नान यानी 1 and 2। ये दो अदद जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं बतौरी सिफत, बतौरी सिफत यानी उनसे पहले लिखा जाएगा। जब आप कहना चाहिए एक बाई या दो बाई, तो आप पहले बाई का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर एक का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर या दो का ट्रांसलेशन करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? जी जी। तो आप इसी तरह कहेंगे, मिसाल अखुन वाहिदुन, कलमुन वाहिदुन, किताबुन वाहिदुन, ठीक है। फिर इसी तरह अगर कभी किताबन होगा तो वाहिदन बनेगा, किताबिन होगा तो वाहिदिन बनेगा। मिसाल अगर यहाँ अखुन खा के ऊपर दो पेश के बजाय दो जेर होते, ये होता अखिन, तो ये बन जाता वाहिदिन। अगर ये दो जबर के साथ होता अखन, तो ये भी बन जाता दो जबर के साथ वाहिदन। अगर ये अलिफ लाम के साथ होता मिसाल अल अखो, तो ये भी अलिफ लाम के साथ आता अल वाहिदो। इसी तरह दो के बारे में, लेकिन मैं यहाँ इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं ताकि आगे आएगा इंशाल्लाह उसके बारे में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। वहां ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। इस्मुहु, उसका नाम क्या है? इस्मुहु उसामतो, उसका नाम है उसामा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उसामा। इस्मुहु उसामतो। उसामा किसका नाम है? मुजक्कर का या मुअन्नस का? मुजक्कर, हाँ बहुत अच्छा, मुजक्कर। लेकिन चूंकि ये भी औरतों के नामों की तरह गोलता पर खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ गोलता है इस्मुहु उसामतो, तो ये भी जैसे अपने पिछले लेसन में पढ़ा कि जो औरतों के नाम है वो तनवीन कबूल नहीं करते हैं। मिसाल आप नहीं कहते हैं फातिमतुन, आप कहते हैं फातिमतु। आप नहीं कहते हैं ज़ैनबुन, आप कहते हैं ज़ैनबु, क्योंकि औरतों के नाम अरबी में जो है वो तनवीन कबूल नहीं करते हैं, वो उन पे तनवीन नहीं आती है, उन पे तनवीन नहीं आती है। तो इसलिए मुज़क्कर नाम भी यानी मर्दों के नाम भी, वो नाम मर्दों के जो गोलता पर खत्म हो रहे हैं उनके साथ भी वही कायदा लगता है जो औरतों के नामों के साथ लगता है। यानी क्या? वो भी तनवीन कबूल नहीं करते, वो भी तनवीन कबूल नहीं करते। यानी अगर यहाँ हम उसामा के बजाय हामिद होता तो यहाँ आ जाता सेंटेंस इस्मुहु हामिदुन, इस्मुहु हामिद, इस्मुहु हामिदुन। हाँ, इस्मुहु हामिदुन दो पेश के साथ। लेकिन चूंकि यहाँ एक ऐसा नाम है जो गोलता पर खत्म हो रहा है, ठीक, जिसके आखिर में ये गोलता है, तो हमने तनवीन के बजाय एक ही पेश लगा दिया, इस्मुहु उसामतु वहुवा, और वो है माई, मेरे साथ। यहाँ एक और फर्क नोट कीजिए, हुआ क्या है? हुआ, डज एनीबॉडी नो ये हुआ क्या है? ग्रामर के लिहाज से हुआ क्या है? इसमें इशारा नहीं, वो तो हाजा है। अच्छा, शाबाश, ज़मीर है, ज़मीर है, बहुत अच्छा, प्रोनाउन है, शाबाश। अच्छा ये क्या है? ये हु, इस्म हु, जो इस्म के आखिर में हु लगा है, ये क्या है? ये इशारा है। नहीं, ये भी इसमें इशारा नहीं है, ज़मीर, ये भी ज़मीर है। ज़मीर है जी। हाँ, दो ज़मीर। तो अब दो ज़मीरों,
اب مجھے یہ بتائیے یہ ہو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. بہت اچھا. اور یہ ہوا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ مذکر کے لیے. یہ بھی مذکر ہے. تو فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ وہ کہاں لگائیں گے اور یہ کہاں لگائیں گے؟ شاباش, نوٹ کیجیے. ضمیر جو ہے, اگر آپ کے پاس پین ہے کاپی ہے تو نوٹ کیجیے. ضمیر کی دو قسمیں ہیں. لکھنے کے حوالے سے عربی میں ہم کہتے ہیں ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ضمیر کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منفصل. منفصل, میم نون فا صاد لام, ضمیر منفصل. ضمیر منفصل. ضمیر منفصل مینز, اس کو انگلش میں ہم لکھیں گے ٹرانسلیشن, ڈیٹیچڈ پروناؤن. ڈیٹیچڈ پروناؤن. جی ڈیٹیچڈ پروناؤن یعنی جو نہ کسی اسم کے ساتھ, نہ فعل کے ساتھ, نہ حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے, الگ لکھا جائے. چاہے کوئی معمولی, اگر کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے معمولی, تو وہ بھی اس کو الگ پڑھتا ہے. جیسے آپ کل ہوا اللہ احد, تو ہوا آپ وہاں الگ پڑھتے ہیں نا, الگ لکھتے بھی ہیں. تو ضمیر منفصل مینز ڈیٹیچڈ پروناؤن, جو الگ لکھی جاتی ہے, الگ پڑھی جاتی ہے, اور ہر کوئی اس کو جانتا ہے یہ الگ حرف ہے. اس کو بولتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن. ڈیٹیچڈ پروناؤن. ٹھیک ہے. جی شاباش. اور دوسری قسم ہے یہ ہو. پلیز آپ یہ ریپیٹ کیجئے, مجھے پرابلم. لکھیے. ہوا جو ہے, یعنی میں نے کہا کہ ضمیر کی عربک میں دو قسمیں ہیں. ضمیر کی عربک میں کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جس کو آپ بولتے ہیں ضمیر منفصل. جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ضمیر منفصل. ضمیر منفصل مینز ڈیٹیچڈ پروناؤن. 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 آپ تھوڑا ویٹ کیجئے, ایک منٹ میں آپ کو یہاں اس سے جو ہے چلیے سر. ڈیٹیچڈ پروناؤن. ہاں, تو میں نے کہا کہ ضمیر جو ہے, ضمیر کی عربک میں کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی عربک میں دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ ہے ضمیر منفصل. ضمیر منفصل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن. ڈیٹیچڈ پروناؤن. نمبر ٹو ضمیر متصل. بہت اچھا. ضمیر متصل جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں اٹیچڈ پروناؤن. ملا ہوا. یہ صرف لکھنے کے اعتبار سے ان کا نام ہے. ڈیٹیچڈ مینز جس کے ساتھ نہ کسی فعل کے ساتھ لکھا گیا ہو, نہ حرف کے ساتھ ملا ہوا لکھا گیا ہو, نہ کسی ورب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا سر؟ آپ لکھ رہے ہیں نا؟ جی چلیے. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ ڈیٹیچڈ پروناؤن اور اٹیچڈ پروناؤن لکھنے کے اعتبار سے. یعنی اوپر والا جو ہے, اس کی مثال لیجئے. اس کی مثال ہے, ہوا. آپ نے یہ ہوا پڑھا, ہوا مینز ہی. اس کی دوسری مثال ہے ہیا, یہ بھی آپ نے پڑھا.
ये भी आप जानते हैं। इसकी तीसरी मिसाल है अंता, ता ज़बर ता। इसकी एक और मिसाल है, मिसाल अंते, आप एक लड़की, आप एक औरत, वगैरह वगैरह। और जो अटैच्ड प्रोनाउन है, जो अटैच्ड प्रोनाउन है, इसकी मिसाल लीजिए भाई, हु, हाँ, का, का, हाँ बेशक, बहुत अच्छा, का यानी आप एक के वगैरह, सॉरी, के वगैरह वगैरह। तो ये इनकी मिसालें हैं। तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट सीखे। एक पॉइंट ये कि लिखने के एतबार से ज़मीर की 2 किस्में, ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट, उनकी मिसालें ये है। तीसरा पॉइंट अब आइए यहाँ, वो है कि ज़मीर मुनफसिल जो है, हुआ, हिया, अंता, ये हमेशा मरफू होती हैं। क्या होती हैं? मरफू होती हैं, हमेशा मरफू होती है। यानी सिर्फ उस जगह जुमले में इस्तेमाल होंगी जो मरफू जगह हो। जैसे मिसाल मुब्तदा हो सकती है, मुब्तदा हो सकती हैं, या हम अगर जुमले फैलिया की बात करें तो फाइल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? फाइल हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? शाबाश, ठीक है ना सर? इसकी अब इसकी पहले इसकी मिसाल लीजिए। मिसाल मैं कहूंगा हुआ उस्तादुन, हुआ उस्तादुन, हुआ उस्तादुन, वो एक उस्ताद है। हुआ उस्ताद, वो एक उस्ताद। हुआ मुब्तदा, उस्तादुन खबर है। मुब्तदा पेश वाला होता है, लिहाजा वहां यही ज़मीर लगेगी, हुआ, डिटैच्ड ज़मीर, डिटैच्ड प्रोनाउन। अब जो यहां है, क्या नाम है, अटैच्ड प्रोनाउन में, यहां पे आप देखिए, इसकी मिसाल तो आपने देखा, हु, हा, का, के। ये ज़मीरें जो हैं, या तो ये मंसूब होंगी, क्या होंगी, या तो ये मंसूब होंगी यानी ज़बर वाली जगह पे इस्तेमाल हो जाएंगी, या फिर मजरूर होंगी, या फिर यानी ऐसी जगह इस्तेमाल होंगी जो जेर वाली जगह। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मिसाल लीजिए, इसकी मिसाल मैं कहता हूं, ज़रब, ज़रब तो हु, ज़रब तो हु, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा। हाँ मैंने उसको मारा। तो यहाँ हु जो है, हम जब हम इस सेंटेंस की एनालिसिस करेंगे, ग्रामेटिकल एनालिसिस, तो हम कहते हैं ज़रब फ़िल, तो फाइल, हु मफ़ऊलुन बिही, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। तो ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे मफ़ऊलुन बिही है। ये आप आगे अच्छी तरह समझिए, लिख लिया, मैं इशारे करता जाऊंगा। दूसरा पॉइंट मजरूर, आप लिखते हैं किताबुहु, 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 उसकी किताब। सो इस सेंटेंस, इस तरकीब में किताब जो है मुजाफ है, प्लस हु क्या है, हु है मुजाफुन इलैहि, मुजाफुन इलैहि, मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैहि, मुजाफुन इलैहि मजरूर होता है। इसी तरह आप कहते हैं लहू, या आप कहते हैं मिन्हु, या आप कहते हैं फीह। ठीक है ना? तो आप इन हरफों के साथ देख रहे हैं, लाम के साथ मिन, ये हरफ जर है, इनके साथ हु लगा हुआ है। या आप कहते हैं भाई लहा, लहा यानी हा की ज़मीर, मिनहा। या इसी तरह कहते हैं आप कहते हैं लका, लका, लकी, लकुम, दीनुकुम वलिय दीन वगैरह। ये ज़मीर का एक मुख्तसर सा तारुफ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको मजीद वजाहत से फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को अपने इसमें रखेंगे। तो लिखने के हवाले से 2 किस्में आ गई, इनकी मिसालें हुआ, हिया, अंता, अंतुम।
और हुआ हिया अंता अंतुम जो है ये सिर्फ ज़मीर मरफू है, सिर्फ मरफू जगह इस्तेमाल हो जाएंगे, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वाज़ह हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये ज़मीरें जो है ये मंसूब और मजरूर, यानी तीन ही हालतें हैं ना, हालतें अगर हम कहेंगे एराबी हालतें जो हैं, एराबी हालतें जो हैं, एराबी हालतें, ये एराबी हालतें तीन ही हैं। एराबी हालतें कितनी हैं? तीन है। एराबी हालतें तीन है। क्या क्या? यानी जब आप कोई कलमा इस्तेमाल करते हैं जुमले में, या तो वो पेश वाला होगा, या तो वो क्या होगा? पेश वाला होगा, यानी मरफू, या फिर जबर वाला होगा यानी मंसूब, मंसूब होगा, या फिर वो क्या होगा? मजरूर होगा, जेर वाला होगा। यही तीन हालतें हैं ना सर, जब हम इस्म की बात करें, जब हम इस्म की बात करें तो यही तीन हालतें हैं। हाँ, अगर फेल की बात करें तो वहां मजरूर की जगह क्या है? मजजूम। मजरूर की जगह मजजूम, यानी फेल के नीचे जेर नहीं आती है, उसके ऊपर जज्म आती है। इस्म के साथ जज्म नहीं आती है, इस्म के साथ जर आती है, वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो जब आप ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, ज़मीर को भी इन्हीं तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में इस्तेमाल कर, इन्हीं तीनों हालतों में से किसी हालत में इस्तेमाल करना होगा, या तो मरफू होगा या मंसूब या मजरूर। जब मरफू है तो आपने देखा जो ज़मीर मुनफसिल है यानी डिटैच्ड प्रोनाउन जो है वो हमेशा इस जगह इस्तेमाल होता है, इस जगह इस्तेमाल मरफू हालत में। बाकी जो हालतें हैं यहाँ ज़मीर ये जो है मुत्तसिल यानी मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउन जो है यहाँ इन हालतों में इस्तेमाल होता है। ये इसकी मजीद वजाहत इंशाल्लाह आगे आएगी। मैं यहाँ इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, हम अपनी बुक की तरफ वापस आएंगे तो वहाँ पे हम मजीद इसको इंशाल्लाह ताला देखते हैं। अब आइए, तो मैं ये कह रहा था इस्मुहु उसामतु व हुआ, यहाँ ज़मीर मुत्तसिल है, चूंकि इस्म मुज़ाफ है, हु मुज़ाफुन इलैह, तो यहाँ पे कुदरती सी बात है मुज़ाफ इलैह ज़ेर वाला होता है, लिहाजा इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? मुत्तसिल लिखना पड़ेगा। तो आप माने याद रखेंगे फिलहाल इस्मुहु उसामा, तो उसका नाम उसामा है, वहुवा मई हुना, वो यहाँ पे है मेरे साथ, फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा। नंबर 2, वली उख्तुन वाहिदा, मेरी एक बहन है, अखुन वाहिदुन उख्तुन वाहिदा। मैंने कहा ना ये वाहिद और तस्निया यानी वाहिद और इस्नान, सॉरी, एक और दो का अदद जो है अरबिक में ये इस्तेमाल होता है बतौरी सिफत के। तो जब हम मुज़क्कर को देख रहे हैं अखुन मुज़क्कर, इसकी सिफत भी मुज़क्कर आएगी। जब हम मोनस को देख रहे हैं उख्तुन, तो इसकी सिफत भी मोनस ही आएगी, उख्तुन वाहिदा। सो अखुन वाहिदुन उख्तुन वाहिदातुन। बहुत अच्छा। इस्मुहा, यहाँ क्या था? इस्मु क्योंकि मुज़क्कर की बात हो रही थी। अब मोनस की, इस्मुहा उसका नाम है ज़ैनबु, ज़ैनब उसका नाम ज़ैनब है। वहिया, यहाँ क्या था? वहुआ मुज़क्कर की बात थी, तो यहाँ मोनस की है तो इसने कहा वहिया फिल इराक, हाँ इराक में है, मा ज़ौजिहा अपने शौहर के साथ, ज़ौजुहा उसका शौहर, मुहंदिसुन एक इंजीनियर है। बहुत अच्छा, शाबाश। फिर हामिद कहता है क्या इंदका आपके पास है सय्यारतुन गाड़ी, या कोई गाड़ी, क्या आपके पास गाड़ी है? हाँ? मोहम्मद ला नहीं, मा इंदी सय्यारतुन मेरे पास गाड़ी नहीं है। ला, ये देखो नहीं में कैसे जवाब देना है, जैसे आप उर्दू में कहते हैं 2 बार ला, ये सॉरी नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, 2 बार नहीं इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अरबी में भी 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन पहली बार आप ला लिखेंगे, दूसरी बार आप मा लिखेंगे। या आप नहीं करेंगे ला इंदी सय्यारतुन, नहीं, आप कहेंगे ला, फिर कहेंगे मा इंदी सय्यारतुन, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी
मेरे पास है, दर्राजतुन बाइसिकल है, हमजा तो हमजा जो है, इंदहु सय्यारतुन उसके पास गाड़ी है, हमजा के पास गाड़ी, ठीक है ना? हाँ। शाबाश। जी, जी। एक और पॉइंट नोट कीजिए, जब इसको बाई के बारे में बात करनी थी पीछे यहाँ, तो इसने कहा लका अखुन, क्या आपका कोई भाई है? लका। लेकिन जब इसको चीज के बारे में सवाल पूछना था तो इसने कहा इंदक, इसने यहाँ नहीं कहा अलका सय्यारत, क्या आपके लिए कोई गाड़ी है? तो नोट कीजिए, जब चीजों के बारे में सवाल करना हो तो आप इंदा इस्तेमाल करेंगे। क्या आपके पास कलम है तो आपके इंदा का कलम, लेकिन जब इंसानी रिश्तों के बारे में सवाल करना हो तो आप लका इस्तेमाल करेंगे। लका अगर लड़की के साथ बात हो रही हो तो लकी, अगर प्लूरल के साथ बात हो रही है तो लकुम, क्या ना? शाबाश। तमारीन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। मस मु क्या, मस मु, शाबाश, हाँ, नाम बताने की, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता जवाब देने की जरूरत है। अरबी में जवाब दीजिए, मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा इन सेंटेंसेस को, आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। मस्मुका, इसमें बुरहान, इसमें बुरहान, बहुत अच्छा, इसमें बुरहान, बहुत अच्छा, शाबाश। नंबर 2, मिन आइना अंत, أنا من كشمير. أنا من كشمير، ما شاء الله، أنا من كشمير. ما شاء الله. نمبر 3، ما لغتك؟ لغتي كشميرية. الكشميرية، لغتي الكشميرية، मेरी ज़बान कश्मीरी है। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 4، أين أبوك؟ अभी फिल बाइट, अभी फिल बाइट, अभी फिल बाइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी फिल बाइट, मेरे वालिद साहब घर पर है। नंबर 5، आइना उम्मुका? उम्मी फिल बाइट, उम्मी फिल बाइट, उम्मी फिल बाइट, मेरी माँ भी, वो भी घर में है। शाबाश। नंबर 6, मत आएगा, हाँ, उम्मी आई, जी नहीं, वो तो तब आएगा जब आप मिसाल कोई इंट्रोडक्शन दे रहे, हाँ, वो साथ ही इसके साथ आएगा। हाँ, बिल्कुल, चूंकि अलग अलग सवालात हैं तो यहाँ हमें आइजन लगाने की जरूरत नहीं है। शाबाश। अलग का अखुन, ली अखी, नाम ली अखी, पहले नाम आएगा, बहुत अच्छा, नाम अखुन, ली अखुन, हाँ, मेरा एक भाई है। अखुन, नाम ली अखुन, वाहिदुन, अखुन वाहिदुन, हाँ, नाम, हाँ, मेरे पास, मेरा एक भाई, I have a brother. नंबर 7, अलका उख्तुन, ला ली, हाँ, क्योंकि नहीं, अब सुनिए, क्योंकि यहाँ हम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें ये सवाल सीखना है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक बहन है, आपका एक भाई है, तो आपको उसको कैसे अरबिक में बोलेंगे। तो मैं सवाल कर रहा हूँ, अलका अखुन, क्या आपका कोई भाई है? आप कहते हैं नाम ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। जब नहीं कहना हो तो वो आगे आएगा, वो आप कैसे कहेंगे वहां हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अलका उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है? नाम ली उख्तुन वाहिदतुन, उख्तुन वाहिदतुन, बहुत अच्छा, शाबाश। नंबर 8, इंदका सय्यारतुन? ला मा इंदी सय्यारतुन, ला मा इंदी सय्यारत, नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। बहुत अच्छा। नंबर 9, इंदका दर्राजतुन? नाम इंदी दर्राजतुन, नाम इंदी दर्राजतुन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी लोग खामोश बैठे हैं, आप भी बात कीजिए। क्या सो गए क्या? ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि बस अटैच तो हो गए, ज्वाइन तो कर लिया, फिर सो गए। हाँ,
शाबाश सारे लोग जो ये करो قولوا لي عندك قلم نعم عندي قلم قلم نعم عندي قلم शाबाश नंबर 11 عندك دفتر لا ما عندي دفتر ما دفتر किसको बोलते हैं कॉपी हाँ वेरी गुड कॉपी को नंबर 12 أبوك تاجر نعم 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 أبي تاجر أبي تاجر शाबाश बहुत अच्छा नंबर 13 من أين محمد ये तो लेसन के बारे में है من أين محمد कहाँ से है पाकिस्तान هو هو من الباكستان ना هو من الهند इंडिया से है वो हाँ वो इंडिया से है चलो हम उसको वहां ले जाएंगे पाकिस्तान ही ले जाएंगे हुआ मिन पाकिस्तान قبقص हाँ नंबर 14 मा लुगतुहु यानी मोहम्मद की अल-उर्दिया शाबाश लुगतुहु अल-उर्दिया शाबाश बहुत अच्छा आइना अबूहु फिल पाकिस्तान भी अबू फिल पाकिस्तान भी कहेंगे या फिल मदीनतुल मुनव्वरा जैसे उन्होंने कहा है इसमें सेंटेंस में इसमें लेसन में शाबाश आइना उम्मुहु फिल बैत उम्मुहु फिल बैत शाबाश नंबर 17 من أين حمزة حمزة من العراق لا حمزة هو من اليابان جاو هو من حمزة هو من اليابان वो जापान से है नंबर 18 ما لغته لغته اليابانية बहुत अच्छा नंबर 19 أين أبوه अबूह फिल गुरफा या अबूह फिल याबान क्योंकि यहाँ बड़ी बात हो रही है जापान के लोग लड़के से हम ये नहीं कहेंगे ना कि आपके वालिद साहब कहाँ है वो कहेगा मेरे वालिद साहब कमरे में है ये तो पर्सनल हो जाएगा ना जब आप यूनिवर्सिटी में मिलेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा वो यही कहेगा मेरे वालिद साहब सोपोर में है मेरे वालिद साहब जापान में है ठीक है अयना अबूह हम कहेंगे अबूह फिल याबान उसके वालिद साहब जापान में है अयना ज़ैनब ज़ैनब कहाँ है फिल जामियत हाँ अगर हम इस ज़ैनब के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र लेसन में आ गया तो वो कहाँ है शाबाश फिल इराक मा ज़ौजिहा शाबाश बहुत अच्छा अयना ज़ौजुहा زوجها في العراق ज़ौजुहा फिल इराक बहुत अच्छा नंबर 22 ज़ौजुहा मुदर्रिस لا هو زوجها مهندس زوجها مهندس माशाल्लाह बहुत तरक्की किए हैं आप लोग माशाल्लाह अब हमें क्वेश्चन 2 जो है शुरू करना है लेकिन हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट का समय रह गया तो हम इस मीटिंग को यहाँ पे खत्म करते हैं तो विद इन 2-3 मिनट्स हम इंशाल्लाह दूसरी मीटिंग करेंगे शुरू आप कहीं मत जाइए यही रहिए हमारे साथ रहिए ताकि जल्द से जल्द हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी शुरू कर सकें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू